Yo, people, what's up? Welcome to Never Stop Dancing Presents Dance Talks, studio partner Piyush Dance Studio, clothing partner Hip Hop Clothing India, clothing partner Lethal Studios, and management partner by AHPN. आज हमारे साथ जो आर्टिस्ट है, he is extremely talented, very hardworking, energetic, skilled, वो तो है ही. बट वो कहते हैं ना कि अगर आपको चर्चा में रहना है तो अपने काम से लोगों के बीच में चर्चित रहना जरूरी है. तो इन शॉर्ट इनका काम बोलता है, इनका डांस बोलता है. सो लेट्स वेलकम मिस्टर अलेक्जेंडर नोएल. Thank you so much, Rai. Thank you so much. And really nice to meet you. Really happy to be a part of this space. वेलकम टू द पॉडकास्ट. Thank you so much. ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट योर टाइम आउट ऑफ द क्लासेस दैट यू हैव बीन टेकिंग एवरी डे. माशाल्लाह, टच वुड, सब नजर वजर ना लगे, क्योंकि बहुत इस इंडस्ट्री में क्रैक करना बहुत मतलब मेहनत तो सभी कर रहे हैं. वो बोलते हैं ना, मजदूर भी मेहनत कर रहा है, बट जिसको मिलना है उसको मिलना है. तो आई होप सबको मिले, एंड आपको मिल रहा है अभी, एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू दैट वे. सो वी विल जंप इनटू द क्वेश्चंस. Yes. But just wanted to know how are you feeling today? How's your vibe today? After a lot of things that are going on in your life, कि अभी क्लासेस चल रही है, इंस्टाग्राम पे रीच है, तो ये सब आप सोचे थे कि कभी आई विल बी गेटिंग दिस मच, और कभी ऐसा थॉट प्रोसेस था कि आई विल बी हियर समडे? I always believed that I will be there. I just did not know how. And 90% of the times यही हुआ था मेरे साथ कि मैं हर बार मेहनत कर रहा था, हर बार एक स्टेप में जाता था, एंड फिर मेरे को लगता था कि हाँ अभी मेरे को ये रास्ता दिख रहा है, और सडनली फिर वो रास्ता हट जाता था. तो फिर मैं सोचा अरे यार अब क्या करूँ. एंड आई डोंट नो हाउ एवरीथिंग हैपेंड, इट समहाउ मैजिकली हैपेंड. बट इफ यू आर आस्किंग मी कि क्या मैंने एक्सपेक्ट किया था कि ये सब होगा, नहीं, ऑब्वियसली नॉट. बट आई समवेयर न्यू दैट इतना तो खुद को काबिल बना दिया कि हम कहीं तो पहुंच जाएंगे. Very nice. So that was a great introduction, guys, by me also. Hosting में call me. Yeah. So let's jump into the question. Very simple. I ask every artist का definition, meaning बहुत अलग रहता है. Would like to know from your side, what is dance for you? Yes, I'm so happy that you asked this question because I personally love art. I personally love movement as well, and like not only in terms of art, not only dancing, I love music, movies, cinema, all of that. So when I first saw, I think Hrithik Roshan dance, that was when I was like, wow, this person moves so amazingly. And then I saw Michael Jackson, and then I was like, wow, this is so great. Somewhere down the road, I think that it motivated me to move, and the feeling that I got after moving was phenomenal. And since then I've always loved dancing, and I see dancing as a very different thing. I feel that everyone should do it, which is जैसे singing जितना accessible है उतना accessible शायद से dancing नहीं है लोगों के दिमाग में. But I still feel everyone should dance because it's somewhere making you happy, and इसलिए शायद से गरबा होता है, इसलिए शायद से भांगड़ा करते हैं, या फिर में गणपति में लोग नाचते हैं. I feel dance gives you a certain amount of joy in a different way only. And I think you need to be a certain amount of crazy to be able to dance happily. And that is who you really are, because you have no filters, कुछ नहीं है. तुम जो हो बिंदास खुल के जब नाचते हो तब तुम रहते हो. So I feel that dance makes you you. So एक वर्ड में अगर बोलना चाहे कि this is the meaning of dance for me, so what will it be? Wow, one word, difficult, but dance is life, I would say. My life. Right now it's my life. Yes. So ये ऑफ कोर्स, ये अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने वाला है इसका टॉपिक बहुत ही लंबा हो सकता है, बट आई वुड जस्ट वांट टू नो कि थोड़े थोड़े कट शॉर्ट सिनेरियोस में आप बता दो, क्योंकि लोगों ने इतना जाना नहीं है आपकी डांसिंग जर्नी के बारे में, कि आपने कैसे स्टार्ट किया और इधर तक कैसे पहुंचे. तेरा नहीं मैं तेरा लवर वीडियोस वैसे सब, तो उधर तक आपकी जर्नी कैसी रही है? हाउ डिड यू स्टार्ट? सो अगर आप इन शॉर्ट में कट फेजेस में बता सकते हो तो. I think I started, like, it's been 9 years since I've started dancing. I started in Ahmedabad after I saw Dharmesh sir, and I just joined a dance class, learned a little bit, and I made new friends there. They introduced me to dancers abroad, like I think Urban Dance Camp, Hilti and Bosch, Eastwood, Brian Puspus, and then we started competing
regionally in Gujarat, and then we started competing all over India. One day there was this competition called R2D, Asia Championship, and then we came over here where international artists were here. That's when we won and we started gaining a little bit confidence. We then did India's Got Talent. Then we did Dance Plus season 4 का ऑडिशन जिसमें हम लोग रिजेक्ट हुए थे. मी एंड माई क्रू. हुआ ऐसा कि जब हम लोग ने सीजन 5 के लिए हम लोग जब ट्राई कर रहे थे, इट वाज आवर एंटायर ग्रुप्स लास्ट ट्रायल एंड दैट्स और तभी हम लोग का रिजेक्शन हम लोग ने सीजन 4 में फेस किया था. पर लकीली सीजन 5 में हम लोग सिलेक्ट हो गए थे. वहां से हमारा जर्नी चालू हुआ था. आवर ग्रुप्स नेम वाज डार्क क्रिमिनल्स, नॉट जनम. Such a cliche. Yeah, so it was just like कि वो टाइम पे पता है ऐसा ना, वो ऐसा सिंबल तो नहीं था. नहीं, वो सिंबल नहीं था, हमारा ये सिंबल था. और फिर हम लोग सब एज ए फिर से एक बार कैमरा के पर अब मैं अभी इसको रिवाइव भी किया है. मेरे लास्ट जो कोरियोग्राफी किया था मैं उन लोग को रिवाइव कर रहा था. और फिर बाद में हम लोग सब एक गैंग साइन और एकदम सब लोग, बिकॉज दूसरे क्रूज थे 13.13 एंड ऑल ऑफ दीज अमेजिंग क्रूज एंड वी वर सो इंस्पायर्ड. हम लोग को करना था कुछ सेम वैसा. तो हम लोग भी कॉम्पिटिशन्स में उतरते थे. उसमें से एक था डांस प्लस और हम लोग का स्टाइल बहुत अलग था. बट सो द विजुअल्स दैट वी वर गिविंग एंड द वे वी वर मूविंग वाज बहुत आर्टिस्टिक, बहुत सटल. तो वो लोग ने बोला आप नाम बदलो या हम आपको बदलेंगे. तो हम लोग ने नाम बदला एंड तब हुआ जन्म जो बोलते हैं. तो दैट वहां से जन्म का जर्नी चालू हुआ है. उसके बाद डांस प्लस 5 के बाद तुरंत जब हम लोग को लगा कि यार लाइफ सॉर्टेड, अभी चलो रियलिटी शो में फाइनली आ चुके हैं हम लोग, अब इधर से हम लोग भी बनेंगे राघव जुयाल, धर्मेश सर वगैरह वगैरह उनकी तरह. पर ऐसा कुछ नहीं हुआ. और कोविड लग गया. हम लोग का इवन जो वर्कशॉप्स प्लान थे या इवेंट्स प्लान थे, ऑल वेंट डाउन हिल. Eventually Puneet sir called me. I came to Bombay. I started working with him. And फिर बस सीखता गया मैं धीरे धीरे. और एक दिन आया जब रियलाइज हुआ कि यार रियलिटी शो से उतना लाइफ सस्टेन नहीं हो रहा, मेरे को शायद से और सोर्सेज ऑफ इनकम क्रिएट करना पड़ेगा. तब मैंने वर्कशॉप स्टार्ट किया एंड आई हैड नो आइडिया इट वुड गो सो वाइल्ड एंड ऑल दैट स्टफ. सो अभी जो कर रहा हूँ बस कर रहा हूँ, अभी कर रहा हूँ खाली. भाई सी दिस इज वन ऑफ द, जैसे आपने बोला इनकम का सस्टेन करना है, मेरे सोर्सेज से मुझे पता चला है, कुड बी ट्रू कुड बी फॉल्स, क्या आप पे कोई लोन था? हाँ, बहुत भारी लोन था. बहुत भारी लोन था. किस वजह से लिया था? बिकॉज आई वॉज सपोज टू मूव टू कैनेडा, सो आई हैड टेकन एन एजुकेशन लोन. हाँ. सो बिकॉज ऑफ दैट वो एजुकेशन लोन मैंने नहीं लिया था, ऑब्वियसली मेरे फैमिली के थ्रू किया था, बट it was for my education. And now I was supposed to leave in 2023 August. और हुआ ऐसा कि 2023 जुलाई में मैंने वर्कशॉप स्टार्ट किया. और जून जुलाई में मैंने वर्कशॉप स्टार्ट किया. एंड सडनली व्हेन आई आल्सो स्टार्टेड डूइंग दिस वर्कशॉप्स, मेरे को भी स्टूडेंट्स के थ्रू एंड मेरे इंस्टाग्राम में और मेरे आजू बाजू में जितने भी लोग थे उन लोग से मेरे को एक रिस्पॉन्स ही ऐसा मिलने लगा कि मेरे को लगा कि शायद से मेरे को रुक जाना चाहिए यहाँ पे. और फिर आई हैड दैट कॉन्वर्सेशन विद माय पेरेंट्स. मैंने बोला कि मेरे को नहीं लगता कि मेरे को अभी कनाडा जाना है. और मैंने ये भी नहीं बोला कि मतलब मेरे को कैंसिल करना है. मैंने से बोला मैं पोस्टपोन करना चाहता हूँ, 2024 में चला जाऊंगा. एंड आई डिड दैट प्रोसेस ऑल्सो. आई डिड नॉट एक्चुअली कैंसिल माई I had a spot booked over there in one college. मैंने वो कैंसिल नहीं किया. बदले में मैंने उनको रिक्वेस्ट डाला कि मैं और लेट जाऊँ वहाँ पे. और ये एजुकेशन लोन है क्योंकि तुम्हें कम से कम अराउंड यू हैव टू क्रिएट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ, यू हैव टू शो कि इतना पैसा है तुम्हारे पास, तभी वो लोग अलाउ करते तुम्हें वहाँ पे जाने के लिए. तो उसके लिए एजुकेशन लोन लिया था. और ये पूरा प्लान कैंसिल हो गया. हमारा फ्लाइट टिकट्स भी बुक हुए थे, सब कुछ हो गया था, सब कैन. और फिर बाद में मेरे को रियलाइज हो कि ये सब पापा और मम्मी ने मेरे लिए किया है. मैं उनको वो बर्डन नहीं डाल सकता कि आप ये मेरा एजुकेशन लोन चुकाओ. तो दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड बीइंग लाइक कि ओके मैं सबसे पहले तो ये लोन चुकाऊंगा. और इसलिए मैंने और मेहनत किया और वर्कशॉप्स लेने लगा. मैं बहुत वर्कशॉप्स, दिन में 5 वर्कशॉप ले रहा हूँ मैं, 4 वर्कशॉप ले रहा हूँ. तो वैसे मैंने ट्राई करके एजुकेशन लोन को निकाला है मैंने. मतलब अभी पूरा क्लियर है. Yeah, I have cleared that. A rough figure if you would like to disclose. So basically for the
education and all, you have to kind of have 9 to 10 lakhs so that you can pay for the fees of the college, your everything, and then it goes to 17 to 20 lakhs. That depends on how many years you're staying. So if you're doing a 1-year course and also the course that you're doing, तो उसके हिसाब से 17 लाख या 18 लाख आता है. एंड अगर आप टेक्निकली देखने जाओ तो 30 लाख आपको होना चाहिए. तो आपने चुकाया कितना, दिया कितना? 30 पर नॉट 30 एग्जैक्टली, क्योंकि मैंने फिर मैं मेरा कॉलेज का सीट भी कैंसिल किया, तो थोड़ा सा अमाउंट वापस मिल जाता है हम लोग को. पर इट वाज अ लॉन्ग प्रोसेस. और वो 2025 के अराउंड आपने क्लियर कर? नॉट 2025, अराउंड 24 ओनली आई क्लियर्ड इट. अच्छा, वेरी नाइस, वेरी ऑनेस्ट आंसर. मतलब लोग इतना डिस्क्लोज करते नहीं व्हेन इट कम्स टू मॉनेटरी फिगर, बट मॉनेटरी फिगर्स तो नहीं होना चाहिए डिस्क्लोज, पर ठीक है. सो इस प्रोसेस में हाउ सपोर्टिव वर योर पेरेंट्स? गुस्सा आया था या फिर बोला कि ठीक है, तेरे को जो पसंद है वो कर ले? मेरे हिसाब से पेरेंट्स जो भी है, ये पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में कोई भी पेरेंट नहीं चाहता अपना बच्चे के लिए बुरा हो. वो लोग अच्छा ही चाहते हैं. मेरे भी पेरेंट्स मेरे लिए अच्छा ही चाहते थे. वो आई थिंक दे आर स्टिल कंसर्न कि क्या करेगा आगे जाके, क्योंकि हम लोग जो फील्ड में, वो आर्टिस्टिक फील्ड है, बहुत वॉलेटाइल है, बहुत कभी भी कुछ भी हो सकता है, वैसा फील्ड है. तो पेरेंट्स ने मेरे को सपोर्ट किया, बट दे वर ऑलवेज लाइक स्कैर्ड, एंड इट इज ऑब्वियस कि वो लोग इतने डरे हुए हैं. तो वो दिखता भी था. पर आई थिंक डांस प्लस तक वो लोग बहुत अगेंस्ट थे. डांस प्लस के बाद वो लोग थोड़े से ऐसे हो गए कि हाँ ठीक है, अभी क्या ही कर सकते हैं, जाने दो उसको, करना है उसको यही तो फिर करने दो. तो उसके बाद से वो लोग ने मेरे पे उतना रिस्ट्रिक्शंस नहीं डाला, बट दे हैव ऑलवेज बीन सपोर्टिव सिंस देन. एंड आफ्टर द वर्कशॉप्स हैव स्टार्टेड, दे हैव बीन एक्सट्रीमली सपोर्टिव. कि पैसा भी आ रहा है अभी. तो अभी पैसा देखते तो बोले अरे अरे बहुत अच्छा कर रहा है मेरा बेटा. तो यस, बट आई एम ऑल्सो वन ऑफ दोज पीपल जिनके पेरेंट्स ने उतना सपोर्ट नहीं किया था इनिशियली. तो आई थिंक वो आपकी स्टोरी नहीं, यूजुअली सबके लाइक एग्जैक्टली कि हर पेरेंट ना रिजल्ट ओरिएंटेड होता है, नॉट इन नेगेटिव वे, कि यार मेरे बच्चे का अच्छा हो जाए बस. तो अगर आप कुछ करके दिखा रहे हो, दैट्स व्हाट आई से टू माय पीपल लाइक यू नो यंगर जनरेशन हो या मेरे एज के हो, कोई भी जो अभी हसल कर रहा है इस फील्ड में, आई ऑलवेज टेल देम कि आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट दिखाना ही पड़ेगा. कोई भी इंडस्ट्री हो, बिजनेस ओरिएंटेड हो या आर्टिस्टिक हो, इंसान आपको तभी चांस देगा जब आपके अंदर पोटेंशियल हो. करेक्ट है ना? पोटेंशियल के बिना आई डोंट थिंक एनीवन वुड हैव बीन लाइक कि यार, क्योंकि सबको यार आपके माँ बाप ने आपको बचपन से देखा है, पाला है, आपको पता है कि ये 2 दिन की चांदनी है या फिर रात, मतलब कब तक चलने वाला है. तो आई थिंक दे सॉ दैट पोटेंशियल इन यू एंड देन दे आर लाइक ओके. आई एम सो सिमिलर टू हिम, दैट इज व्हाई मैं भी ऐसा हो गया था कि यार आप क्यों मना कर रहे हो, खुद ने तो बिजनेस किया था. उन्होंने भी अपने पापा झगड़ के बिजनेस किया, तो मैं बोला आप मेरे को क्यों रोक रहे हो. पर एडिंग ऑन टू आप जो बोल रहे थे पेरेंट्स का, मेरे को ये एक्चुअली जो अपने ऑडियंस है उनको बोलना है कि अगर आपके माँ बाप आपको रोक रहे, टोक रहे, तो बहुत अच्छी बात है. क्योंकि आई वॉन्ट यू टू फाइट देम ऑल्सो, नॉट फाइट देम इन अ बैड वे. अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू प्रूव समथिंग टू देम, और आपको वो प्रूव करना पड़ेगा. क्योंकि आपके माँ बाप जो रिस्ट्रिक्शंस आप पे डाल रहे या जो बोल रहे आपको, इससे बुरे तरीके से दुनिया डालेगी आप पे. एंड अगर आप आपके माँ बाप को के साथ लड़ना सीखते हो ना, तो आप कहीं ना कहीं मेंटली प्रिपेयर हो रहे हो टू फाइट द वर्ल्ड ऑल्सो. एंड आई थिंक माँ बाप वही चाहते. वो लोग ना बोल के भी ना, वो कहीं ना कहीं देखना चाहते हैं कि आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे. और अगर आप उनको हरा लिए तो फिर तो आप दुनिया को भी हरा लोगे. सो दैट इज अ माइंडसेट कि जब मेरा ये हो गया ना, एक बार झगड़ते हैं तो किसको अच्छा लगता है. एक बार हो गया, उसके बाद मैं जब पीछे देखता हूँ तो बोले सही तो बोल रहे थे वो लोग भी, गलत तो कहाँ ही बोल रहे थे वो लोग. तो मैं आज भी देखता हूँ तो आई एम लाइक कि ओके, इट मेक्स सेंस नाउ दैट आई एम हियर. बट यस, आई लव द फैक्ट दैट दे पुट दोज रिस्ट्रिक्शंस सो दैट आई कुड like break out of that cocoon. I could break out of that cocoon and I could be that person who I always saw myself. At the end of the day, कोई भी अगर आपको चीज कन्विंस करनी है पेरेंट्स को या जो भी है, आपके अंदर पोटेंशियल दिखाओ. अगर आपके अंदर जेन्युइनली वो इंटेंशन और वो पोटेंशियल नहीं है ना, nobody would be able to invest that thought in you कि भाई तू कर सकता है. Correct, true. Yeah. So भाई this topic is so interesting. Before I jump on to the next question, भाई 24 लाख, मतलब वो प्रेशर कि मेरे को करना है, अभी मैं डांसर हूँ, 24 लाख इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट. तो भाई बस नाचना और वो प्रेशर भी रखना, भाई क्या माइंडसेट रहा होगा when you had started working and you were like I have to clear that amount and I have to find my way through this. It was
मेरे लिए ये था कि अगर तू चाहता है कि तू तेरे टर्म्स और तेरे कंडीशंस के हिसाब से जिंदगी जीना चाहता है तो तेरे को मेहनत करना पड़ेगा। एंड मैं ना वो पॉइंट से पहले मैंने इतना जमीन देख लिया था ना कि मेरे को चलता, कुछ भी चलता, कि आप मेरे से 12 घंटा नचा लो, आप मेरे से 16 घंटा काम करा लो, पर मेरे को ये पैसे चाहिए। एंड एट दैट पॉइंट आई वॉज लाइक, इफ आई वॉन्ट टू लिव द लाइफ दैट आई ड्रीम्ड ऑफ, या मेरे को अगर वो जिंदगी जीनी है जैसे मेरे मेरे टर्म्स एंड कंडीशंस में, तो मेरे को पैसा चाहिए। एंड उसके लिए मेरे को सबसे पहले तो लोन क्लियर करना पड़ेगा, और उसके बाद का जो भी मेरे को मिलेगा वो मैं मेरे लिए रख सकता हूँ, पर उसमें भी मेरे को सोचना पड़ेगा कि इसके आगे का क्या। तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही माइंडसेट था, भाड़ में या सब कुछ, काम करते रहे, दुनिया को जो बोलना है बोलने दे, तू सिर्फ काम कर, तू सिर्फ मेहनत कर, तू जितना हो सकता है उतना, तू 12 घंटे नाचेगा, तेरे को नाचना था ना, तो तू अभी अगर 12 घंटा नाच रहा है तो तू क्यों रो रहा है? तो यू वांटेड टू बिकम अ डांसर, नाउ इफ यू आर डांसिंग फॉर लाइक मोर देन 6 आवर्स, यू आर लाइक कि मेरे को शरीर दर्द हो रहा है, नहीं, नो एक्सक्यूजेस। यू वांट दैट लाइफ, यू विल हैव टू हिट इट। 12 घंटे नाचेगा तू, 10 घंटे का जैसे जॉब होता है वैसे शिफ्ट्स मारेगा तू, पर तू करके ही रहेगा। तू वो अमाउंट क्लियर करेगा रखेगा, और उल्टा उससे ज्यादा करेगा ताकि तू तेरा लाइफ और सस्टेन कर सके। तो वही माइंडसेट था। एंड आई थिंक फॉर दैट 1 ईयर आई हैव जस्ट लेफ्ट राइट सेंटर में हर रोज क्लास, आई हैव टेकन क्लासेस लाइक फॉर मोर देन, अगर एक साल में 365 डेज है, मैंने शायद से 500 क्लासेस किए इन दैट 1 ईयर। आई हैव डन अ lot of classes that year, so just so that I could one repay the loan and then build a future that is more sustainable in India, ऐसा। सो अगर अभी कोई पूछेगा ये क्वेश्चन कि क्या डांसर्स पैसा कमा पाए अभी मेहनत करोगे तो कमा पाओगे। ओके भाई, सो कमिंग टू योर डांसिंग राइट नाउ भाई, जब आप आई नो फॉर अ फैक्ट अभी वो लोन का था, ये था, बट फॉर एन आर्टिस्टिक वे, व्हाट इज योर थॉट प्रोसेस जब आप एक कोरियोग्राफी सेट कर रहे हो, एक रूटीन सेट कर रहे हो कि मुझे क्लास में सिखाना है, क्या थॉट प्रोसेस रहता है? डिपेंड्स ऑन किसके लिए मैं क्लास ले रहा हूँ। So now I've got a different audience. Before I did not have an audience, and I realized that, like for example, if I'm teaching in UDW or if I'm teaching in Artist League, where I know that there are going to be really good dancers, जहाँ पे अच्छे ट्रेनिंग वाले डांसर्स आएंगे, मैं एक ऐसा रूटीन क्रिएट करूंगा जो उनको चैलेंज करे। अब ये सेम चीज मैं करता हूँ दूसरे कोरियोग्राफीज के साथ भी, मैं चैलेंज ही कर रहा हूँ, पर अभी ऑडियंस अलग है। ऑडियंस वो वाली हो गई है जो लोगों को डांस आता ही नहीं है, वो लोग को सीखना है बस, वो लोग को शायद से पहला कदम रखना है एक डांस स्टूडियो में। और मेरे हिसाब से अगर मैं उनके लिए एक ऐसा रूटीन क्रिएट करूं जो देख के उनके अंदर मोटिवेशन ही मर जाए कि मेरे को तो नाचना ही नहीं है, तो फिर आई एम नॉट हेल्पिंग देम। आई नीड टू क्रिएट समथिंग दैट will motivate them to dance more so that they step into a studio more and maybe they bring another friend कि देख भाई मस्त मजा आया था मेरे को लास्ट टाइम, तू भी आ। ये माइंडसेट के साथ मैं कोरियोग्राफीज करता हूँ फॉर क्लासेस। नाउ आई ऑलवेज बिलीव दैट व्हेन यू आर कोरियोग्राफिंग फॉर अ वर्कशॉप और फॉर अ क्लास, you are not choreographing for yourself. You can create something that is also for yourself, but you need to also cater to the people that you are dancing for. और यू आर वांटिंग देम टू डांस। आप वर्कशॉप ले रहे हो ना, आप एक क्लास सिखाना चाहते हो, तो वो लोग भी मूव करेंगे, तो आप क्या सिखाना चाहते हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मेनी टाइम्स आई फील अ लॉट ऑफ द आर्टिस्ट दे डोंट थिंक अबाउट like what would they like to learn. They think about what I would like to give, and it's great also. As far as there are interested people, उतने लोग हैं जो आप में इन्वेस्टेड है, तो चलेगा। पर मेरा थॉट प्रोसेस कई बार ऐसा होता है कि यार मैंने ये गाना सुना, मेरे को लगा यार ये गाना मेरे को नाचना है, और अगर मेरा मूड है तो मैं नहीं देखूंगा कि किसके लिए मैं कोरियोग्राफ कर रहा हूँ। आई कोरियोग्राफ इट फॉर मी, and then I'll see, do I want to teach this piece or not. There are routines like that also, and there are routines like ki, oh, I feel that this song is very popular, I think I should choreograph this piece. It would be a good business decision. बहुत सारे बच्चे आना चाहेंगे, सीखना चाहेंगे कि उनको they want to move on this song. So how would I choreograph that piece? Then I'll choreograph that piece differently. So that's how I do it. देखो अभी रियलिटी शोज में सबने सबने आपको वो लेवल पे डांस करते हुए देखा है, तो अभी आप जैसा आपने बताया कि when you put that one level or two level down to teach a certain kind of an audience, क्या आपको कभी ऐसा एज एन आर्टिस्ट कभी ऐसा वो चुभता है कि यार मैं लेवल डाउन करके सिखा रहा हूँ? नहीं,
मेरे को कभी ऐसा नहीं लगा है। और ये मेरे को लगता है बहुत पर्सपेक्टिव की बात है हम्म। कि समझ लो कि आप एक रेसर हो। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूँ, आप रेसर हो, आपको पता है आप गाड़ी कितना फास्ट चला सकते हो, आपको पता है, तो आप हर जगह फास्ट थोड़ी ना चलाओगे। इट्स व्हाट आई बिलीव इज दैट यू हैव अक्वायर्ड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ स्किल, आपने एक इतना अमाउंट ऑफ स्किल आपने अक्वायर कर लिया है, फिर आपके ऊपर है कि आप क्या सिखाना चाहते हो, आप क्या देना चाहते हो लोगों को। इफ आई फाइंड हैप्पीनेस in creating a routine, and when I personally find happiness when students are able to do something. When they are happy, I am happy. So I genuinely look at that in that way. I do feel bad जब मेरे को ऐसा लगता है कि यार ये कोरियोग्राफी मैंने अच्छे से नहीं बनाई, मेरे को लगता है कि यार ये मैं बेटर बना सकता था, ये रूटीन मैंने जस्टिस नहीं दिया, या ये गाने को मैंने जस्टिस नहीं दिया, तब मेरे को बुरा लगता है। पर मेरे को कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मेरे को टोन डाउन करना पड़ रहा है या नहीं करना पड़ रहा है। आई एम नॉट competing against anyone, I'm not racing over here. I don't want to be the best. I know that I've got a certain amount of skill and I just want to share that. और वो जरूरी नहीं है कि मैं फिर बाद में 10th स्टैंडर्ड वाले को सिखाऊं, कॉलेज वाले को सिखाऊं, या फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे को सिखाऊं। हूँ तो मैं टीचर ही इवेंचुअली। सो इट डज नॉट, आई डोंट केयर कि जैसे टीचर्स हो गए हो, वो लोग अगर इंजीनियरिंग सीख गए हो तो फिर भी अगर फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चों को सिखा रहे हो तो सिखा रहे हो, आप एक फर्स्ट स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को केटर कर रहे हो। सो आई वुडेंट से कि यार आपका नॉलेज खराब हो गया या फिर तो आप तो क्या ही कर रहे हो, आप अभी ABCD सिखा रहे हो, क्यों सिखा रहे हो। नो, आई थिंक इट्स हिज जॉब टू डू दैट। एंड वही मेरा थॉट है कि मेरे को नहीं लगता कहीं पे भी कि मैं अगर थोड़ा ईज डाउन कर रहा हूँ या टोन डाउन कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट इवन कंसिडर इट टू बी दैट। What I feel is that okay, I'm making a piece, a routine that is that I like, and I would like to share it with other people, which is more accessible for them to move, ऐसा। तो और कुछ नहीं, जैसे मैंने दूसरे भी रूटीन्स बनाए हैं और वो मेरे को पता है कि मैं नहीं सिखा पाऊंगा उन लोग को, वो लोग नहीं मूव कर पाएंगे कि उन लोग को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ स्किल चाहिए वो करने के लिए, अचीव करने के लिए। बट नो, आई डोंट थिंक ऑफ इट दैट वे। थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट इट कि अगर क्यों ऐसा है कि अगर आपको कोई गाना गाना है, आप भी गा सकते हो, मैं भी गाना गा सकता हूँ, क्या इज इट necessary for you to be a singer to sing? No, right? No. It is, anyone can sing, anyone should be able to sing. Why is it with dance कि आपको यार ऐसे ही डांस करना पड़ेगा, ये डांसिंग सही डांसिंग है, ये डांसिंग गलत डांसिंग है, ऐसे क्यों? डांस डांस होता है, गरबा गरबा है, अपना भांगड़ा भांगड़ा है, सब कुछ अपना ही है। Dancing is dancing, and I feel the more accessible it gets, the better for all the dancers in the world, and especially the people who want to take dancing up ऐसे, क्योंकि आपको और ऑडियंस मिलता है, आपको और इंटरेस्टेड लोग मिलते हैं। और ये मेरा एक सिर्फ ये मैं बोल रहा हूँ कि पिछले 2 साल में या 3 साल में, गुड और बैड, probably not a growth, but I have seen the number of dancers in India increase exponentially in the past 2 years because of whatever this side of the culture has been doing. क्योंकि अभी मैंने UDW में गया था, I saw almost like 100 or 150 students of mine standing over there who I never even thought would enter a place like this, who probably did not even know about a place like this. But now all of these people are aware, they are coming, they are challenging themselves and they are learning. So I just feel that कि शायद से इंडिया 2 साल पहले फर्स्ट स्टैंडर्ड में था, अभी वो आ गया है थर्ड स्टैंडर्ड में, और धीरे धीरे जो लोग भी कंप्लेन कर रहे हैं ना, नहीं होगा आपके कंप्लेन्स। Give me 2 more years or give India 2 more years. In the next 2 more years, they will be doing routines that we did not even think ki, oh, they can pull off. They will be able to do that. And India will evolve in crazy ways in terms of dance. जब आप बोल सकते हो कि दिस पर्सन इज स्किल्ड, तो उतना टाइम आपको, आपने जैसा बोला आपने Correct. 9 साल दिए हैं, तो जब आपने मतलब एक रियलिटी शो किया है, कोरियोग्राफीज सिखाई है, चाहे वो मूवी कोरियोग्राफीज हो, सॉन्ग कोरियोग्राफीज हो, आपने डांस को इतने पास से देखा है, आप जब बोलोगे ना तो ये सही लगेगा कि हाँ ठीक है, ईज डाउन Makes करना है, sense. ये करना है। बट प्रॉब्लम कहाँ होती है पता है? जो लोग 1 साल 2 साल बस आई वुडंट से सीख के भी बस वो इमिटेट करके दे वांट टू मेक अ बिजनेस आउट ऑफ इट। Makes sense. तो आप इसके लिए क्या जवाब है आप? So मैं ये भी पता है कि आप किसके बारे में बात कर रहे हो, पर अभी वो हो गया। हाँ। मैं वो चीज बोल रहा हूँ कि इट वॉज नॉट प्रोबेबली सपोज टू हैपन, वो हो गया क्योंकि और कोई था नहीं। अभी आप ये भी सोचो कि अगर वो टाइम पे कोई होता और जो लोग अच्छा कर रहे होते हैं और जिनके पास स्किल्स है,
वो लोगों ने भी है ना वो टाइम पे क्या किया, देवर लाइक कि नहीं करना मेरे को ये सब, मैं बड़ा हूँ और ऑल दैट स्टफ. अब आई अंडरस्टैंड दैट बिकॉज दे आर आर्टिस्ट, व्हाई वुड दे वांट टू कॉम्प्रोमाइज विद देयर आर्ट, आई टोटली अंडरस्टैंड दैट. पर जिन्होंने सोचा कि भाई मैं इसका धंधा बना देता हूँ, उन्होंने बना दिया, वो लोग ने कर लिया. अब उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते. नाउ वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट. व्हाट वी कैन डू इज मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट, इज व्हाट आई बिलीव. कि क्योंकि वो हो गया. और मेरे को ये भी लगता है कि इवेंचुअली लोगों को क्वालिटी समझ में आता है. अभी उन लोगों को सिर्फ एक ही जगह दिख रहा है, एक ही इंसान दिख रहा होगा या फिर 2 इंसान दिख रहे होंगे, 3-4 इंसान दिख रहे होंगे, और उनको रियलाइज हो रहा है कि यही है डांसिंग अपना इंडिया का. अभी मेरे को भी लगता है जैसे और लोग आएंगे, क्योंकि हम इनको देख के जो लोग स्किल्ड है एक्चुअली वो लोग बोल रहे कि हम गधे हैं, हम लोग भी कर सकते हैं, ये हम लोग आते हैं. अब ये लोग जब आएंगे तब जो ऑडियंस है वो लोग को भी ऐसा होगा, ओ ये लोग तो और खतरनाक है यार, ये लोग तो और क्रेजी है, ये लोग तो और मस्त कर रहे हैं. एंड इवेंचुअली दे विल स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग दिस. यू कांट चेंज व्हाट इट इज बिकॉज जो हो गया वो हो गया. कैसे हुआ मेरे को भी नहीं पता. मुझे यही लगता है कि जो आर्टिस्टिक पीपल है ना, आई नो दे डोंट वांट टू डू इट, बट कहीं कहीं यहीं पे मार खा जाते हैं. बोलने में और करने में बहुत फर्क है. आई फील कि अडेप्टेशन होना चाहिए ऑफ कोर्स, बिकॉज जैसे आप 90s के डांस देख लो, 80s के डांस देख लो, वो डांसिंग तो नहीं चलती अभी. सो एग्जैक्टली विद द टेक्नोलॉजी, तो जैसे जैसे चीज़ें बदली है, म्यूजिक टेस्ट बदला है, कॉस्ट्यूम्स बदले, आपके ड्रेसिंग स्टाइल बदला है, फैशन बदला है, वैसे डांसिंग कहीं ना कहीं चेंज हुई रहेगी. प्रॉब्लम क्या आ जाती है पता है आर्टिस्टिक लोगों के साथ, वो करते नहीं है. एंड व्हेन दे सी, लाइक यू सेड, व्हेन दे विल स्टार्ट डूइंग इट, पीपल विल लाइक कि हाँ ये क्वालिटी है, ये भी है मार्केट में, और ये भी ये हाईएस्ट लेवल का क्वालिटी है. द सोल्यूशन टू दिस कैन बी कि यार बोलो मत करो यार. आर्टिस्ट में ना एक प्रॉब्लम है. आर्टिस्ट आर रियली, जैसे स्पेशली डांसर्स, आई फील वी आर हॉरिबल बिजनेसमैन. Horrible businessmen. We don't know how to do business properly. And the people who are doing business properly are earning really well. And I think artists लोग का क्या प्रॉब्लम है, एक तो उनको मोनोटनी पसंद नहीं आता, एक ही चीज़ करना उनको पसंद नहीं आता, और उन लोग को फाइनेंशियली खुद को इंडिपेंडेंट या फिर हमें फ्रीडम क्रिएट करना नहीं आता. फिर वहाँ में वो क्या करते हैं, वो लोग दे कीप गिविंग इट फॉर, दे कीप वर्किंग हार्ड, विच आई टोटली एडमायर बिकॉज आई एम वन ऑफ दोज पीपल जिन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया है. सिर्फ हम लोग हर रोज 6 घंटे नाच रहे, 7 घंटे नाच रहे, कोई मोटिव नहीं है, कोई पर्पस नहीं है. दे आर जस्ट डांसिंग, जस्ट डांसिंग, जस्ट डांसिंग बिकॉज दे लव डांसिंग एंड दे आर काइंड ऑफ गेटिंग बेटर एट देयर आर्ट. बट नॉट अ सिंगल आर्टिस्ट थिंक्स कि इससे मैं अर्न कैसे करूँ, या फिर इससे मैं आगे मेरा फाइनेंशियली मैं इंडिपेंडेंट कैसे रहूँ. आई फील आर्टिस्ट शुड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दैट. एवरी डांसर शुड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दैट, क्योंकि 25 तक तुम नाच सकते हो. 25 के बाद कितने डांसर्स और कितने क्रेजी डांसर्स को मैंने गिव अप करते हुए देखा है उनके आर्ट फॉर्म पे. क्यों? क्योंकि दे डोंट नो हाउ टू मेक मनी. एंड आई फील वहां पे बहुत मार खाते हैं अपने लोग, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो. आई फील देर आर स्टिल अदर पीपल हु आर सो स्मार्ट, दे नो हाउ टू मेक मोर मनी थ्रू विथ लेस स्किल. मेक सेंस. एंड आई वाज लाइक कि वाओ दिस इज सो गुड, ये मैंने क्यों नहीं सोचा. और हम लोग यार स्किल होता है, और हम लोग यार वो दिमाग नहीं होता है कि यार मैं पैसे कैसे कमाऊं. बट अगर किसी का पर्पस है ही नहीं टू अर्न पैसे कमाना, सिर्फ नाचना पूरी लाइफ टाइम, क्योंकि मिट्टी से आए मिट्टी में जाना है, वैसा वाला थॉट प्रोसेस है कि भाई एक दिन चले जाएंगे तो फिर उनके लिए क्या. बट दिस इज फॉर दोज पीपल हु आर ऑल्सो कंप्लेनिंग कि उसको इतना क्यों नहीं मिला. अच्छा, नॉट फॉर दोज जिनको मेरे को आई एम 100% जो ऐसे है कि मेरे को नाचना है, खुद नाचना है, मैं यहाँ मिट्टी से आया हूँ, मिट्टी में ही जाना है, तो उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है. ही इज हैप्पी विथ हिमसेल्फ. बट इफ यू आर ऑल्सो गोना बी लाइक कि ये इसको क्यों मिल रहा है, उसको क्यों नहीं मिल रहा है, इसको क्यों मिल रहा है, अगर आप ऐसे भी हो रहे हो तो फिर बाद में आप खुद भी पूछो कि आपने कितना मेहनत किया है फॉर यू टू बी सीन उतना. अभी इसमें अब ये जो जितना भी प्यार मिलता है भाई, लड़कियों से कितना ज्यादा प्यार मिलता है लड़कियां भाई. अभी चेक करेंगे आपके मेल फॉलोअर्स, फीमेल फॉलोअर्स, कौन सा ज्यादा परसेंटेज. female followers. let's see, can you please Alright. check your Instagram? It is female followers also only. But yeah, देखते परसेंटेज. प्रोफेशनल डैशबोर्ड, फॉलोअर्स, टोटल फॉलोअर्स. Okay, let's go. let's कहाँ go. पे होता है भाई टोटल टोटल followers? फॉलोअर्स में न्यू फॉलोअर्स, टोटल फॉलोअर्स किधर है भाई? इधर दिखा. नहीं कुछ नहीं. हाँ नहीं दिखता, ये प्रूफ है कि मेरे को नहीं पता. Oh my guys, 75
0.3% women, 24.7% men. भाई लड़के देखते ही नहीं यार मेरे को। अच्छा, और 18 से 34 के बीच में ज्यादा है, मतलब 25 और 34, 25 to 34 इज मोर, उसके बाद में 18 to 24, बट 75% ब्रदर मेरा ज्यादा मेल है गाइस, मेल फॉलोइंग मेरी ज्यादा है। आई थिंक ये तो डांस प्लस के टाइम से 75% नहीं, women are 75% नहीं, वो टाइम पे आई थिंक कुछ तो 55% फीमेल्स एंड 45% मेन था। fun. ये जो हुआ है उसके बाद लवर बन गया आप सबके। लवर नहीं बोल सकते बट ठीक है। तेरानी में, तेरानी में भाई। अभी जैसे सोशल मीडिया की बात हो रही है, आपके जो फॉलोअर्स हमने बात की है 75% ये सब, तो भाई ऑफ कोर्स आज के टाइम पे सोशल मीडिया प्लेज अ वेरी बिग रोल इन आर्टिस्ट लाइफ। अभी आपने ऑफ कोर्स क्रैक कर लिया है, तो क्या एडवाइस रहेगी आर्टिस्ट के लिए कि कैसे क्रैक करे, अभी इन टर्म्स ऑफ फॉलोअर्स, बी इन टर्म्स ऑफ इनकम, जनरेटिंग इनकम, और अपना ब्रांड बनाने के लिए, स्केल करने के लिए, तो क्या एडवाइस रहेगी? व्हाट हैव यू नोटिस्ड टिल नाउ? मैंने अभी तक ये नोटिस किया है कि इंस्टाग्राम इज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म, यूट्यूब इज ऑल्सो एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म, वी ऑल हैव रियलाइज्ड दिस। जब मैं भी हर एक दूसरे आर्टिस्ट की तरह ये समझने की कोशिश कर रहा था ये क्या है, ये सब फॉलोअर्स वॉलोअर्स वो सब मेरे को इतना कुछ खास लगता नहीं था। एंड आई स्टिल आई एम नेवर बीन अ बिग पर्सन कि आई नीड फॉलोअर्स। व्हाट आई रियलाइज्ड वाज कि ओ इट हेल्प्स माय बिजनेस, it helps me earn more, and that is when I actively started investing in that, putting my mind in that। और तब मेरे को रियलाइज हम सबको दिखता है, हम सबको समझता है कि क्या करना चाहिए, पर आर्टिस्टिकली हम लोग को वो चॉइसेस लेना है कि नहीं इज द क्वेश्चन। एंड फॉर मी व्हाट वर्कड द मोस्ट वाज कि मत सोचो, कम सोचो, ज्यादा करो, है ना। मेरे को लगता है कुछ लोग इतना प्लानिंग करना चाहते हैं, इतना प्लानिंग करते हैं कि वो लोग फर्स्ट स्टेप ही नहीं ले पाते। करो, करते रहो, स्टार्ट डूइंग एंड जस्ट ठीक है, आपको अच्छा लगा, कीप इट एज रॉ एज पॉसिबल, शो हु यू रियली आर इज व्हाट आई थिंक योर सोशल मीडिया और स्पेशली योर इंस्टाग्राम शुड लुक लाइक। कि इंस्टाग्राम आपको एज अ ह्यूमन डिस्क्राइब कर रहा है, एंड मोर देन दैट ईदर इट्स डिस्क्राइबिंग योर बिजनेस और इट इज डिस्क्राइबिंग यू एज अ ह्यूमन बीइंग। सो एम आई सीइंग यू और एम आई सीइंग पीपल हु आर लाइक यू? मेक सेंस? यस। सो मतलब काइंड ऑफ कितने लोगों को मैं देखता हूँ वो लोग कॉपी करना चाहते हैं चीजें, तो कंटेंट वो लोग इतना कॉपी कर लेते हैं कि वो लोग खुद का आइडेंटिटी भूल चुके हैं, वो लोग सिर्फ अभी कंटेंट कॉपी कर रहे हैं। अब है होते हैं ऐसे भी लोग जिनका मतलब फॉलोअर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, पर 90% of the times people will own, like the people who are creating natural content and their own content are obviously gaining more followers and more loyal followers. Probably in numbers these guys might be bigger, but this guy will eventually do better in life. तो वो भी है, और बस दिखाओ यार जो तुम्हारा है, इतना सोचो मत। फॉलोअर्स और ये सब अपने आप होगा। आई स्ट्रांगली बिलीव इन दैट 3 इडियट्स लाइन कि सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सीलेंस के पीछे भागो, सक्सेस विल कम behind you. And mine, I think one of the reasons why my followers grew was sheer numbers. It's just math, pure basic math. If I'm going to meet 30 people every single day, those 30 people will talk about me, they'll share about me, I'll be known among at least 60 people. That's how it slowly increases. It's just math, nothing else. कभी आपने मतलब अगर टेक्निकली बात करें, तो क्या आपने सोचा कि ये ट्रेंडिंग ऑडियो है इसीलिए मैं ये करता हूँ, या फिर ये टाइमिंग पे मुझे पोस्ट करना है तो मैं ऐसा करता हूँ? कभी सोचा है आपने? सोचा तो नहीं है, पर मैंने आई हैव एक्टिवली वांटेड टू बी कंसिस्टेंट इन दिस थिंग। तो जब ट्रेंडिंग ऑडियो आता है तो मेरे को ट्रेंडिंग ऑडियो से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को नहीं फर्क पड़ता ट्रेंडिंग ऑडियो है कि नहीं है। मेरे लिए मैटर करता है कि डज द सॉन्ग टॉक टू मी, अपलोड टाइम। दैट आई हैव ऑलवेज थॉट कि यार लोग कब फ्री होंगे, शायद से वो लोग जॉब में जाते हैं, जॉब के बाद वो लोग शाम को 6 बजे को या फिर 7 बजे तक फ्री होंगे, तो आई थिंक आई कैन अपलोड अराउंड दैट टाइम। दैट हैज वर्कड फॉर मी। बट बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि मैंने 6 बजे शाम को अपलोड किया है, व्यूज नहीं आया है, और दूसरी बार जब मैंने शायद से दोपहर को 12 बजे अपलोड कर दिया है, आ गया है। सो आई डोंट थिंक दैट देयर इज समथिंग स्पेसिफिक टुवर्ड्स इट। मेरे को ऐसा लगता है कि अगर वो कंटेंट देख के आपको लगता है कि यार मेरे को और देखना है,
तो ऑब्वियसली वो वायरल होगा या फिर हमें उसमें आपको एंगेजमेंट मिलेगा। जो कंटेंट में आप खुद भी आप देख के एक बार देख के आप रख रहे हो तो फिर हमें शायद से आप वो कंटेंट नहीं क्रिएट करेगा उतना एंगेजमेंट। और बहुत बार वो भी कॉन्ट्राडिक्ट हुआ है कि द कंटेंट इज सो अमेजिंग एंड यू आर लाइक सरप्राइज कि व्हाई हैज इट नॉट वर्कड। सो देयर आर गुड साइड्स टू इट, देयर आर बैड साइड्स टू इट, पर ठीक है, क्या ही कर सकते हैं। आपका प्रोफाइल कितने टाइम में बढ़ा? आई थिंक व्हाटएवर ग्रू हैपेंड इन 2 years। नहीं मतलब एज इन कि अभी कितने 500 के प्लस something, फॉलोअर्स है yeah. आपके, रिसर्च किया मैंने 500 के फॉलोअर्स हैं, तो ये चलो मैं समझता हूँ कि अभी अभी इतने साल में ग्रो हुआ है, बट कब आपको लगा कि मेरे बैंग ऑन फॉलोअर्स बैक टू बैक बढ़ रहे हैं? वो एक वीडियो से डालने से हुआ या फिर काफी वीडियोस के व्यूज से हुआ? क्योंकि ऐसा होता है ना यूजुअली व्हाट हैपेंस कि सभी आप हिट जा रहे, वो कब हिट जा रहे हैं? जब वो आपका टॉप वीडियो हिट हो गया, उससे आपके सारे वीडियोस के व्यूज बढ़ गए, या तो आपने स्टार्टिंग एक दो ऐसा कंटेंट या फिर ऐसा वीडियो कुछ भी डाल दिया एंड हिट हो गया, तो उसके बाद आप जो भी डालोगे तो उसके भी व्यूज ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे। मेरे लिए तो अलग सा फेज था। आई थिंक 2023 2024 वाज ग्रेट फॉर माय इंस्टाग्राम पर्सनली बिकॉज व्हाटएवर कंटेंट आई वाज अपलोडिंग इवेंचुअली इट गॉट अ लॉट ऑफ रीच। मैंने सोचा ही नहीं था, मेरा उतना कुछ अकाउंट इतना खतरनाक कुछ नहीं था। मैंने बिना सोचे सिर्फ कंटेंट अपलोड करता गया और वो कंटेंट को बहुत एंगेजमेंट मिलता गया। एंड आई थिंक वन वीडियो पर्टिकुलरली इट वाज आई थिंक तेरे वास्ते, कि वो टाइम पे वो गाना भी बहुत पॉपुलर हो गया था वगैरह सब कुछ, और वही 2-3 वीडियो थोड़े से और पॉपुलर हो गए थे। तो मेरा एक कोरियोग्राफी था उस पर जो थोड़ा सा पॉपुलर हो गया था, एंड बिकॉज ऑफ दैट द वीडियोज अराउंड इट started getting a little more engagement. And then what happened was my classes in Bombay started getting a lot of numbers through word of mouth only, कि भाई इसके क्लास करना, इसका क्लास करना, इसका क्लास में मजा आता है, इसका क्लास करना, ऐसे करके बहुत नंबर्स बढ़े। तो आई थिंक ह्यूमन इंटरेक्शन ही इतना ज्यादा हो गया था मेरा, और मेरी बातें ही इतने ज्यादा हो गई थी बॉम्बे में और दूसरे सिटीज में कि यार ये कोरियोग्राफर है, ये इंसान है, ये ऐसे ऐसे क्लासेस कर रहा है। दैट इज हाउ आई थिंक इट हैज हैपेंड टिल नाउ। But I am one of the last persons who checks Instagram also, क्योंकि मेरा दिमाग honestly बोलो तो खराब हो चुका है कि I used to spend like 4 hours every single day on Instagram just resharing stories or probably replying to students or even just informing them कि देखो आपको यहाँ पे आना है, ये स्टूडियो में है मेरा वर्कशॉप, यहाँ पे हो रहा है, आपको आ सकते हो तो आ जाओ। ये चीज करने के लिए ही मेरा दिन का 4 या 5 घंटा जाता था, और एक पॉइंट क्या मेरा दिमाग खराब हो गया। मैं फिर अभी इंस्टाग्राम ऐसे रखता हूँ और फिर जब टाइम मिले तो थोड़ा बहुत देख लेता हूँ बस। जो स्टूडेंट्स आते हैं आपके पास सीखने के लिए, तो इसमें से जेन्युइनली कौन कौन सीखने आता है और कौन कौन सोशल मीडिया के लिए वीडियो बनाने के लिए मेरे आता है? को जैसे अभी आप ये बोल रहे हो कौन कौन सीखने आता है, कौन कौन सोशल मीडिया में वीडियो बनाने के लिए आता है। अब पिछले 2 साल से हर क्लास में मैंने ये मैंने बोला है कि हर क्लास में, जैसे मैं वर्कशॉप खत्म है कोरियोग्राफी सिखा देता हूँ, फिर हम बच्चों को सामने बिठाता हूँ और फिर हम लोग ग्रुप्स में जो नॉर्मली हम लोग वर्कशॉप में ग्रुप्स करते हैं, उससे पहले मैं बोलता हूँ कि देखो समझो, वर्कशॉप्स का मीनिंग ही अलग होता है। इट मीन्स दैट यू आर हियर फॉर लर्निंग, यू आर नॉट हियर ओनली टू मेक अ डांस वीडियो और अ रील, यू आर हियर टू लर्न। येस यू कैन मेक अ वीडियो, येस यू कैन अपलोड a reel, and I know you guys know me also through Instagram videos and reels, so I'm not hating on it, but understand the priority of a workshop is to learn, is to have fun, dance. Yeah, it's not about only making a video. But बहुत cities में initially मेरे को बहुत problems face करना पड़ा था, क्योंकि students wanted a solo. ऐसा भी नहीं कि वो लोग को वीडियो तो बात की बात है, they want a solo, they want to dance with you because that's what they've seen on Instagram. And आप सोचो 100 बच्चों को सोलो करना है, मैं घर कब जाऊं, मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं कर सकता ना। मैं ही समझाता भी हूं, उसमें से कोई होता है कि आपके साथ ही वीडियो बना। हाँ, आप मत नाचो, आप पीछे रहो खाली। क्यों क्या करूंगा मैं तो, और मैं पीछे रहता तो उससे अच्छा तो मैं नाच ही लूं, ऐसा पीछे खड़े होने से तो बेटर है कि नाच ही लूं। तो आपको पसंद आता है वो जब ऐसा होता है कि यूजुअली वो मीम्स भी बने हैं ना, मेरा बहुत बना है भाई, कि ऐसे चलते रहते पीछे कोरियोग्राफर तो बच्चे नाच रहे। हाँ, सो अभी उसका पीछे मैं माइंडसेट बताता हूँ कि क्यों करते थे हम लोग।
तो initially why I used to do is because a lot of students used to forget the choreography. So whenever we used to stand back and we used to walk around, we were like, ki, I want to see ki if this student is forgetting or that student is forgetting or not. And I think initially started also like that कि बच्ची भूल गई, फिर कोरियोग्राफर भाग के आता था और फिर बाद में वो सिखाता था और फिर हमें सारे सब लोग ओ व्हाट अ क्यूट कोरियोग्राफर वगैरह वगैरह ये सब अरे मतलब ज्यादा सच बोल रहा हूं मैं थोड़ा, बट लाइक I also used to do that and it genuinely आपने helps भी the झुमके students. उठाए? झुमका मैंने तो नहीं उठाया बट मैं एक्चुअली बहुत स्टूडेंट्स को मैंने इसमें हेल्प किया क्योंकि बहुत अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं ये लोग, ये लोग को नहीं, ये लोग सेल्फ डाउट में तो अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं, तो मैं उनके पास ज्यादा बोलता था कि तुम कर सकते हो, यू स्टॉप डाउटिंग योरसेल्फ, यू कैन डू दिस. और मैं उनके पास जाता था तो उन लोग को और वो अफर्मेशन मिलता था कि अच्छा सर ने बोला है तो कुछ तो करना पड़ेगा. एंड आई यूज्ड टू वॉक बिहाइंड जस्ट टू मेक श्योर कि जस्ट इन केस इफ एनीवन फॉरगेट्स तो फिर हमें आई वांट टू हॉप इन एंड हेल्प देम. तो उसके लिए हम लोग नॉर्मली कोरियोग्राफर्स पीछे रहते हैं और ऑब्वियसली हम लोग भी चीयर कर रहे होते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो क्रेजी होते हैं, मस्त नाच रहे होते हैं, हम लोग भी देखते देखते, और ये हमको रियलाइज होता नहीं है कि हम लोग का भी वीडियो बन रहा है. तो हम लोग भी ऐसे देखते थे ये मुंह बना लेते हैं, तो हम लोग को भी रियलाइज होता नहीं है. हाँ क्यूट कोरियोग्राफर तो फिर बोलेंगे, बट दैट इज आई हैव फेस दैट. मैं रहा हूँ पीछे हर स्टूडेंट के, और मेरे को मीन्स आई डोंट केयर अबाउट मच, बट बिकॉज आई नो दैट वॉट आई एम डूइंग इज समथिंग बिगर एंड इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. मेरे को रहना पड़ेगा वो स्टूडेंट्स के लिए, भले जैसे भी क्यों ना हो, और भले वो भूले जो भी करे, मेरे को रहना पड़ेगा उनके लिए. मेरे को डांस करने की इच्छा भी बहुत होती है कुछ स्टूडेंट्स के लिए. सैचुरेशन आता है कभी कभी बहुत बार, कितने बार ये सेम चीज करूं. वही गाना भी ना, वही गाना 800 बार बजा रहे हो आप, तो होता है. बहुत बोर भी होते हो, तो मैं पता भी है ये चीज में. और पर यही है कि कोई सिंगर अगर अपना एक कॉन्सर्ट का प्रिपेयर कर रहा है तो वो सेम सेट हर सिटी में करेगा, हर कंट्री में कर रहा है सेम सेट. वो तो एक्सक्यूज नहीं बना रहा ना कि भाई बोर हो गया यार, एक ही गाना गा रहा हूँ मैं कब से. स्टैंड अप कॉमेडियंस आल्सो, यस, दे आर डूइंग द सेम सेट इन एवरी सिटी. दे हैव टू बिकॉज इट्स देयर जॉब, it's their responsibility. I have a job, I have a responsibility. As far as if I've created something and people want to learn, I will have to cater towards them until I decide कि हो गया, अभी भाई उतने लोग भी नहीं आ रहे और अभी मेरे को उतना देने की जरूरत नहीं है, फिर अब मैं रख दूंगा उसको साइड में. जैसे मैं क्लासेस में मेक श्योर करता हूँ कि मैं गलत नॉलेज स्प्रेड ना करूँ. ये एक पॉइंट है जहाँ पे मैंने बहुत whenever I've had the same discussion about commercial community and all that stuff, I've always heard this, that a lot of the teachers in the commercial segment are spreading wrong like information and not the right information they should. वहाँ पे मैं मेक श्योर करता हूँ कि वो गलती मेरे से ना हो कभी. और मैं मेक श्योर करता हूँ कि जो भी मैं इन्फॉर्मेशन दूँ, आई एम नॉट टीचिंग एनी पर्टिकुलर स्टाइल. आई डोंट वांट टू डू दैट बिकॉज आई फील दैट इफ देयर इज हिप हॉप, हाउस और पॉपिंग, लॉकिंग, अगर वो मेरे से मत सीखो, क्योंकि मेरे से 10 गुना बेहतर लोग हैं जिनसे आप सीखना चाहिए आपको वो. पर अगर आपको कोरियोग्राफी सीखना है, आ जाओ, मजे करेंगे हम लोग. दैट इज जस्ट माई थॉट. मेरे को नहीं पता कि मैं क्या स्टाइल करता हूँ. मेनी पीपल आस्क मी व्हाट इज योर डांस स्टाइल. आई जस्ट टेल दैट ये गाना है, मेरे को ऐसा मूव करने की इच्छा हुई, ये है मेरा स्टाइल. क्योंकि अभी तो स्टाइल पे भी कितना क्या बोलूँ मैं उसको, हिप हॉप बोलूंगा तो लोग मार देंगे मेरे को. मैं अगर बॉलीवुड बोलूंगा तो वो गलत है, मैं अगर गरबा बोलूंगा वो गलत है. एवरी कम्युनिटी इज वेरी स्ट्रॉन्ग, हैज गॉट स्ट्रॉन्ग इमोशंस टुवर्ड्स देयर ओन स्टाइल. सो आई फील ठीक है, कोई नहीं, मैं जो करता हूँ मैं करता हूँ. आई एम हु आई एम एंड दिस इज हाउ आई वुड लाइक टू मूव ऑन दिस. वुड यू लाइक टू मूव सिमिलरली टू दैट? देन प्लीज कम. वो आपका मर्जी है कि आपकी मर्जी, आपको अच्छा लगा ऐसा, आपको भी मूव करना है, आप प्लीज आइए, आप प्लीज मेरे से सीखिए, आप भी मजे करिए, मैं भी मजे करूंगा, हम दोनों साथ में मजे करेंगे एंड वील हैव अ ग्रेट टाइम. विल डांस, विल लर्न एंड देन यूल गो होम. सो व्हेन इट कम्स टू द वर्ड टीचर, तो आप क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्ड करते हो? बिकॉज यू ऑल्सो नो वेरी वेल 2-2 महीने 3-3 महीने 1 साल के बच्चे सीख के टीचर बन जा रहे हैं भाई. आप बताओ. मेरे हिसाब से सबसे पहले तो मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है क्लासेस लेते हुए. आई एम नॉट अगेंस्ट इट, बट मेरे को ऐसा लगता है कि सबसे पहले तो उनको मैं बोल दूं कि क्यों कर रहे हो आप, क्यों सिखाना चाहते हो आप. आपके पास अभी वो सबसे ज्यादा फ्रीडम है सीखने का. गो, लाइक आई फील इफ यू आर अंडर 18 और इफ यू आर अंडर 20,
don't start teaching as of now. Probably you can start teaching, you can start taking regulars, or maybe like, teach so that you can financially sustain yourself. आप फाइनेंशियली थोड़े से इंडिपेंडेंट हो सको, इसके लिए आपको, अगर आपको डांस का सहारा या फिर सिखाने का, लाइक टीचर बनने का सहारा लेना है, लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आई अंडरस्टैंड दैट. पर जब आप फिर एग्रेसिवली खुद को भी पुश कर रहे हो या फिर दुनिया को दिखा रहे हो कि यार मैं नेक्स्ट कोरियोग्राफर, मैं टीचर, मैं अभी लूंगा क्लास और ये सब, मेरे को लगता है नहीं ज़रूरत है. क्योंकि आपने अभी तक शायद से आपका खुद का पोटेंशियल एक्सप्लोर नहीं किया है कि आप क्या कर सकते हो एज अ डांसर. क्या पता आप एक और साल मेहनत करो एंड यू विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट एंड बेस्ट डांसर्स ऑफ इंडिया. वाई डोंट यू ट्राई दैट आउट? क्यों आप अभी सिखाना क्यों चाहते हो? आप जाओ ना, सीखो. मेरे को लगता है जब आप 24-25 के हो जाते हो, you go through so much in your life that you develop experiences. You naturally you become an experienced person. अब आप एक डिसीजन लो कि आपको क्या करना है. बाकी मेरे को लगता है आपको एक सर्टन अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक सर्टन अमाउंट ऑफ स्किल होना चाहिए, to make sure that you know what you're teaching. It can't be steps from another choreography, steps from that choreography, steps from this choreography merged together, and then you're teaching to students. It can't be that, because if you're doing that, you don't have any skill of your own. You've just developed skill by using other people. और सस्टेन नहीं करेंगे ज़्यादा. आपके पास कोई स्किल नहीं. और मेरे को नहीं लगता ये स्टूडेंट्स भी, या फिर जो लोग खुद को 2 days में वर्कशॉप्स या जो भी लेना चाहते हैं, शायद से आप जैसे बोल रहे हो 1 साल में 2 साल में वो लोग वर्कशॉप्स लेना चाहते हैं, अगर वो लोग लेना भी चाहते, कोई नहीं, लो यार, मेरे को क्या प्रॉब्लम है. पर मेरे को लगता नहीं कि वो लोग सस्टेन होंगे, या फिर हमें, बिकॉज दे डोंट हैव दैट मच टू ऑफर. जब आप एक क्लास में जाते हो ना, आप एक टीचर को देखते हो, तो आपको उनसे एक टीचर वाली वाइब आनी चाहिए, क्योंकि एंड ही कैन ओनली गिव दैट वाइब व्हेन ही हैज गॉट अ लॉट टू ऑफर. एंड मेरे लिए एक चीज क्या वर्क किया है, आई वॉज वन ऑफ दोज नॉन डांसर्स इन माई लाइफ, जिसको डांस करना नहीं आता था, जिसको राइट लेग हिलाने बोलते थे तो लेफ्ट हिलाता था. तो मेरे लिए बहुत इजी हो गया टू ब्रेक इट डाउन, क्योंकि मेरे लिए मेंटली मैं वो ब्रेक डाउन कर रहा था. तो मेरे लिए वो सेम ब्रेक डाउन नॉन डांसर्स के लिए करना थोड़ा इजी हो गया था. तो मैं को समझ गया कि वो लोग किस तरीके से सोचते हैं, या वो लोग का क्या थॉट प्रोसेस होगा क्लास में अंदर आने के बाद. और वहाँ पे मैं एक टीचर का रोल निभाता हूँ. और मैं ये क्लास में भी बोलता हूँ कि आपने मेरे को देखा होगा डांस प्लस में, आपने मेरे को देखा होगा इंस्टाग्राम पे, मैं, आप लोग मेरे को सेलिब्रिटी मानते होंगे, पर जब मैं वो दरवाजे के अंदर आया, मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ, मैं एक टीचर. और मेरे को एक टीचर का रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले निभाना पड़ेगा. उसके बाद जैसे ही बाहर जाऊंगा, आप लो फोटोज, आपको जो प्यार देना है, मैं उसका बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, पर मैं यहाँ पे एक टीचर का रोल निभा रहा हूँ. तो मैं आपको ना गलत सिखा सकता हूँ, और ना ही मैं आपको ये मोटिवेशन दे सकता हूँ कि बनाओ वीडियोज यार, करो जो करना है, बात करो, मोबाइल फोन यूज करो क्लास के अंदर. आई कांट. आई मेड इट वेरी स्ट्रिक्ट, एंड प्रॉबेबली आई मेक श्योर दैट स्टूडेंट्स learn at least a little bit in class and change their mindset थोड़ा सा, कि भाई अभी ये क्लास में मेरे को समझा कि एज अ स्टूडेंट कैसे बिहेव करना है. क्योंकि ये लोग ने कोई वर्कशॉप भी नहीं किया लाइफ में, तो ये लोग आते ही है पहले क्लास में, तो वो लोग को क्या है, उन लोग को रियलाइज होता है, अरे शिट, कि अभी मैं, ये होता है क्लास, ये ऐसे होती है क्लासेस, ऐसे मेरे को सीखना है. समझा. well, a lot to learn from you. I told you कि वैल्यूएबल कॉन्वर्जेशन था. मुझे ऐसा लगता है कि आपके साथ बात करके ना, यू हैव रीच दैट स्टेज ऑफ योर लाइफ, एंड आई थिंक सबको ये प्रैक्टिस करना चाहिए. किंग मेंटालिटी होता है कि आप, आई नो वॉट यू फील इनसाइड. मेरे को प्रॉपर आइडिया है आप क्या सोचते हो अपने बारे में, आपको कितना अकेलापन लगता है कभी कभी इतना लगता है कि आई एम सो मच लव्ड बाय पीपल, बट डू आई डिजर्व दिस, आई डू डिजर्व दिस, बट आई एम नॉट रिस्पेक्टेड बाय दिस वन, बट आई एम रिस्पेक्टेड बाय दिस वन. बट एट द एंड ऑफ द डे एक क्वालिटी है जो आपके लिए वर्क करी है, किंग मेंटालिटी. जब आप देखो, शेर क्या सोचता है उसको पता है, ठीक है, उसको ही पता है, बट वो जब जा रहा है, जब वो अपियर हो रहा है, वो है शेर ही. तो आई थिंक जब भी आप स्टूडियो में स्टेप इन करते हो, जब भी आप अपना काम कर रहे हो, यू हैव दिस किंग मेंटालिटी, भाड़ में जाए, मैं राजा, मैं काम करेगा, मैं दिखाएगा, माई वर्क विल स्पीक फॉर मी. इसलिए इंट्रो में तो भी बोला कि योर वर्क स्पीक्स फॉर यू. सो दैट्स व्हाट आई हैव नोटिस्ड. सेम, इवन व्हेन आई गो फॉर एनी community workshops, I have taken a lot of classes like that, but the moment I step in, I know what I want, I know how I will be seen, and I know what to do over here. I know how to move in that situation. I can't move like जो मैं नॉर्मली दूसरे वर्कशॉप में करता हूँ. तब मेरे को मेक श्योर करना होता है कि नहीं भाई, यहाँ पे दिखा दे क्या कर सकता है तू. तो वहाँ पे मैं फिर वैसा स्टेप्स और वैसे फुट डाउन भी रखता हूँ मैं, और वैसा मूव भी करता हूँ फिर वहाँ पे.
तो ये क्लैरिटी क्या 24 साल के बाद आई? ये क्लैरिटी 24 साल के बाद नहीं आई। आई थिंक एक चीज होता है जो मैंने कुछ स्टूडेंट्स को भी बोला है कि इवन एज अ डांसर, बिकॉज मेच्योरिटी सिर्फ हमारे लाइफ में नहीं होता, मेच्योरिटी एक फील्ड में भी होता है। कि अगर आप एक फील्ड को प्यार करने लग रहे हो तो फिर बाद में लाइक इवन इफ यू आर अ फुटबॉल प्लेयर और मे बी एनी आर्टिस्टिक स्किल, यू विल स्लोली स्टार्ट गेटिंग मैच्योर। जैसे मैं शायद से इनिशियली जब डांसिंग देखता था तब आई वाज ऑल अबाउट, इट वाज ऑल अबाउट फ्लैशी मूव्स, स्पीड एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। नाउ आई रियलाइज दैट ओ आई डोंट नीड दैट, आई कैन प्रॉब्ली जस्ट गिव अ हेड टिल्ट एंड बी लाइक ओ फिर से करना। सेम टाइमिंग पे की बहुत हमारा फिर से करना। आई कैन जस्ट प्रॉब्ली डू अ हेड टिल्ट एंड इट कैन हैव मोर स्ट्रॉन्गर वैल्यू, क्योंकि Yeah. वो सही बैठ रहा है वहाँ पे। Correct. और वो चीज मेरे को, वो मैच्योरिटी शायद से 24 के बाद आई कि मेरे को 24 पे रियलाइज हुआ ओ क्यों मर रहा था मैं इतना, क्यों मेरे को इतना फास्ट फास्ट है। बट वही है कि यू नीड टू लर्न एवरीथिंग सो दैट यू रियलाइज ओ दिस इज व्हाट आई वांट। सो वो चीज था। देखो ये सिटी ने आपको दिया है हाँ। इतना, है ना? ये चीज मेरे को हाँ। बहुत प्यारा एक चीज बोलना था, हाँ। दिस इज फॉर एवरी ड्रीमर हु कम्स टू बॉम्बे। मेरे को लगता है कि बॉम्बे ना पहले तुम्हें टेस्ट करेगा कि क्या तुम मेरे काबिल हो। अगर एक बार बॉम्बे को पता चल गया ना कि तुम काबिल हो, फिर ऐसा प्यार बरसाता है ना कि तुम्हें मजा ही आ जाएगा। और ये बॉम्बे का एक है, मैंने दैट्स व्हाई लाइक यू नो टिल देन अंटिल दिस हैपेंड आई वाज लाइक सिटी ऑफ ड्रीम्स, क्या सिटी ऑफ ड्रीम्स, क्या सिटी ऑफ ड्रीम्स, कुछ नहीं। फिर वाला सिटी ऑफ ड्रीम्स मेक्स सेंस। अभी सी आई नो वेयर यू आर, व्हाट यू स्पोक एंड एवरीथिंग। एज अ पर्सन, रात को जब ऐसा जाते हो घर पे जहाँ पे आपके खाली थॉट्स रहते हैं, खाली दिमाग रहता है, तो कभी ऐसा थॉट आता है कि यार मैं कर क्या रहा हूँ, ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, रियलिटी भी कर लिया, सोशल मीडिया से भी कर लिया, लोन हो गया, सब है, फीमेल फैन फॉलोइंग है 75%। तो कभी ऐसा लगता है कि यार अब क्या है, मतलब क्या करूं, ऐसा कोई खालीपन लगता है कि बहुत बार व्हाट इज द थॉट? क्योंकि मेरे को लगता है हम एज इंसान वही तो करते हैं, हम लोग बस एक गोल ढूंढना चाहते हैं ताकि हम भाग सके उसके पीछे। तो मैं अभी यही सोच रहा था कि मैं अब क्या करूं। मैं हर बार ये सोच रहा हूँ कि अब क्या करूं, एंड वहाँ पे आई थिंक वी मतलब वी ग्रो, एंड वहाँ मेरे को वही क्रैक करना बाकी है अभी। और उम्मीद रखता हूँ कि अगली बार जब पॉडकास्ट में आऊँ मैं यहाँ पे वापस, तो मैं मेरे पास उसका जवाब हो कि देखो मैंने ढूंढ लिया कि क्या करना चाहिए। और दिखते हैं, मतलब अभी फिलहाल के लिए आई एम थिंकिंग अबाउट अ फ्यू प्रोजेक्ट्स, आई डोंट नो लाइक आई हैव नॉट फॉर्म देम येट, बट होपिंग एंड फिंगर्स क्रॉस्ड, होपिंग दैट दे ऑल कम लाइक यू नो टर्न आउट वेल। और हम लोग जो भी मैं प्लान कर रहा हूँ उससे शायद से बहुत सारे डांसर्स को भी अपॉर्चुनिटीज मिल सकता है, तो मे बी फॉर डांसिंग इन इंडिया जनरली। सो लेट्स होप दैट दैट कम्स आउट ट्रू। ऐप खोलने का कुछ सोच रहे हो? ऐप, not exactly app, but like I feel like dancers are very underappreciated in terms of art के लाइन में। जैसे बात शायद से कोरियोग्राफर्स और इस सब की हो गई थी। आई थिंक बॉस्को सर ने ये बारे में बोला था in an interview. Choreographers don't get enough credits. Correct. Not even credits. I feel like now choreographers should start asking for royalty. Like they are making a routine. Like अगर आप एक म्यूजिक वीडियो देख रहे हो, ठीक है, आपको 3 विजुअल, एक मतलब आप ऑडियो सुन रहे हो, दैट इज अ सॉन्ग। सेकंड, यू आर सीइंग द आर्टिस्ट, यू आर सीइंग द पीपल, एंड थर्ड द थिंग दैट यू आर लाइक attracted towards is that they're dancing. And yet in that entire video dancers are not even recognized. उनका ना नाम है, ना कोरियोग्राफर का नाम है, कहीं नहीं। तो मेरे को लगता है कि शायद से कोरियोग्राफर्स को भी अभी एक मतलब अपना फुट डाउन रखना चाहिए और बोलना चाहिए कि नहीं, हमको रॉयल्टी दो। जहाँ पे भी आपकी ये आर्टिस्ट या फिर कोई और इंसान ये करेगा, अगर आप कोई अवार्ड फंक्शन में कर रहे हो या फिर हमें आप कहीं और कर रहे हो, ये स्टेप कर रहे हो, आपको पे करना पड़ेगा हमको। आई फील दैट इज हाउ सिंगर्स आर अर्निंग, राइट? लाइक वो लोग एक गाना निकाल देते हैं, उसके बाद वो लोग कितने टाइम तक वही चलाते रहते हैं, या फिर जब तक यार कोरियोग्राफी के साथ ऐसा क्यों है? क्यों अगर एक आर्टिस्ट कोरियोग्राफर एक म्यूजिक वीडियो में काम करता है तो फिर हमें वो जितना वो गाना जा रहा है या फिर हमें जितना बार वो वीडियो प्ले आउट होता है, तो कोरियोग्राफर्स को कुछ तो मिलना चाहिए। मुझे वही है ब्रो कि सुनो, हम लोग ही कम समझेंगे तो फिर लोग भी अपने को कम ही समझेंगे। यूडीडब्ल्यू में जब गया था तो मैं बहुत सारे इंटरनेशनल आर्टिस्ट से बात कर रहा था, एंड दे हैव गॉट डांसर्स अलायंस करके, देयर इज दिस thing where they make sure that like you know every choreographer or any artist, if they are working, they are getting a certain amount.
मतलब एक मिनिमम अमाउंट उनको मिल रहा है, अगर उनको उतना नहीं मिल रहा तो कोई नहीं जाएगा. So I think that is much needed in India also. So for the next 10 years, किसी के गोल होते हैं कि for the next week मैं क्या करूँ, for the next 6 months मेरा गोल ऐसा है, for the next 10 years ऐसा है. तो आपका ऐसा कुछ है कि लॉन्ग टर्म गोल है, कुछ है या आपने मेरे फिगर को आउट किया नहीं है अभी तक? मेरे को in the next 10 years financial freedom attain करना है. अच्छा. So basically you're working for it. Financial freedom. I think everything we do in life is towards that and should be towards that. Once we've got financial freedom, एक बार financial freedom मिल गया, फिर मेरे पास वो freedom है, मेरे को जो चाहिए मैं वो कर सकता हूँ. Probably मैं experiment कर सकता हूँ. Probably मैं एक दिन काम भी ना करूँ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता. पर मैं चाहता हूँ कि जितना जल्दी हो सके उतना मैं जल्दी financial freedom attain करूँ. भाई बहुत मजा आया. Thank you so I much. and मेरे पार्टनर्स को थैंक यू बोलना है. A huge shout out to Piyush Dance Studio, our studio partner, our clothing partner, Lethal Studios, our clothing partner, Hip Hop Clothing India, and our management partner AHP. And this podcast wouldn't have possible without these guys. And our gifting partner for today is Hip Hop Clothing India. So we have a gift for you. Oh, wow. So we have a gift for you from Hip Hop Clothing India. B-Boy Monk owns this. So we have a gift for you. Thank you so much. Thank you so much, Hip Hop Clothing India, for this beautiful gift. So our another gifting partner is Lethal Studios for today. So we have another gift. Viraj owns this. So Viraj has sent this. Lethal Studios has sent this. So we have another gift for you. Thank you so much. विराज भाई बहुत टाइम हो गया मिलके, बहुत साल पहले मिले थे. एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल गिफ्ट. थैंक यू सो मच. Lethal Studios, I would love to, come here someday. A lot of people love you, bhai. Keep doing the work. Thank you, man. Just keep doing it. Keep Thank you doing so it. much. Trust Thank you me, so you are much. doing amazing. I love your work genuinely. A lot of people love your work genuinely. 75% women love my work, specifically. Yes. and 25% men love your work. And see you soon. It was a lovely For sure. podcast. Thank you so much. See you all, guys. Take care. Peace and keep dancing.